if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च। किसी कामन में समर्पित करें। बोलिए यज्ञ भगवान की। जल्दी से आप ये आटे का रोटी बना लें, तिलक लगा दीजिएगा बाबूजी उनको, बच्चे को तिलक लगाइए और घर परिवार के अन्य सदस्यों को भी तिलक करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आगे पूजन करते चले। रक्षा सूत्र धागा, कलावा का धागा आपके पास रखा हुआ है। एक धागा लेकर के बच्चे के दाहिने हाथ में कलावा बांधेंगे। दीक्षा वाले परिजन भी एक दूसरे के सहयोग से कलावा धागा बांधेंगे। वैवाहिक वर्णों को बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। बच्चे को आप लोग कलावा बांधेंगे। आप लोग एक दूसरे को कलावा धागा बांधा, मुट्ठी बंद रखे कलावा बांधा। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए यज्ञ भगवान की। कलश देवता का पूजन। दाहिने हाथ में अक्षर पुष्प ले लीजिए, हल्का हल्का अक्षर पुष्प उपयोग करेंगे। विश्व ब्रह्मांड प्रतीक कलश देवता का ध्यान करें। कलश देवता से प्रार्थना करें हमारी पात्रता विकसित हो,
प्रार्थना कलश देवता का पूजन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणे हवद्युर्षग्वं समान आयो ब्रह्मोषि। ओम फिर से अक्षत पुष्प लेकर ज्योति पुरुष का ध्यान, ज्योति समान हमारा जीवन प्रकाश में बने, प्रार्थना करें, पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, समर्पित कर दे। देवावाहनम, गुरु चेतना का आह्वान करते। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करती है। जीवन जिसके जीवन में सद्गुरु ना हो उनका जीवन अंधकार में होता है। इसलिए जीवन में आवश्यक है सद्गुरु का वरण। कैसे गुरु का वरण करें? जो तपस्वी हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो साधक हो। चलते फिरते किसी को भी गुरु बना लेने से कोई फायदा। गुरु बाबा बना दिए, गुरु तो बना लिए, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, तो आपको क्या बताएंगे? इसलिए जीवन में हम किसी को भी गुरु ना बनाए, नहीं तो गुरु शब्द का अपमान होगा। लोग बीड़ी मांगते, गुरु बीड़ी देना, गुरु उनको बना दिए बीड़ी पीने वाले को, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गए। इसलिए ऐसे गुरु का वर्ण करे जो तपस्वी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्होंने अपने जीवन में 24 महापुरुषण किए, 24 लाख मंत्रों का जब 24 बार 15 वर्ष की आयु से 24 साल में यह महापुरुषण साधना कठोर तप किया, गायत्री मंत्र को सिद्ध किया। मात्र गुरुदेव ने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की और 3200 पुस्तकों का लेखन कर दिया। सारे बुक आपके यहाँ साहित्य स्टॉल में उपलब्ध है, आप एक बार जाना जरूर देखना। सब गुरुदेव के द्वारा, इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। ये कोई साधारण मनुष्य की बस की बात है। जिनका उद्देश्य था मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती स्वर्ग में बने। इतना बड़ा कोई संकल्प नहीं ले सकता साधारण मनुष्य। अवतारी चेतना, आइए ऐसे गुरु चेतना का आह्वान करते हैं। ऐसे गुरु का आशीर्वाद, संरक्षण, मार्गदर्शन हम सबको मिले। आइए अक्षत पुष्प लेकर गुरु देवता से प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ओम श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, समर्पित कर दे। आदि शक्ति माँ गायत्री आवाहनम, दाहिने हाथ में पीला चावल पुष्प ले लिए। सभी देवताओं की जननी माँ गायत्री का ध्यान करें, सद्बुद्धि की प्रार्थना। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि, समर्पित करना। दोनों हाथ जोड़कर माँ गायत्री की स्तुति वंदना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अविघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणपति देवता एवं गौरी माता का आह्वान करते। अक्षत पुष्प ले लीजिए और गणेश गौरी का आह्वान करते। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, समर्पित करते। अब नवग्रह देवता का पूजन। अक्षत पुष्प ले लीजिए, नवग्रह देवता का ध्यान करें। ग्रहों की छाया प्रतिछाया हमारे जीवन में पड़ती है।
जीवन में जो भी हमने पूर्व जन्म का जो संस्कार कर्म था उसका प्रभाव जीवन में दोष रूप में भोगना पड़ता है। तो कोई भी ग्रहों का दोष लगा तो इसका सरल समाधान हमारे गुरुदेव ने बताया कि जो भी ग्रहों का दोष लगा इस दोष का सरल समाधान है सूर्य की उपासना। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, सूर्य को अर्घ प्रदान करता है, गायत्री महामंत्र सविता देवता का जप करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन में कोई भी ग्रहों का दोष लगा हुआ दोष समाप्त हो जाता है। सरल समाधान सूर्य की उपासना। घर जाकर के उपासना के लिए कुछ समय जरूर निकालें। कुछ नहीं कर सकते कम से कम सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, उसी समय 5 बार 11 बार गायत्री मंत्र जप लें। सूर्य भगवान से बच्चे के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। बच्चे के जीवन में देवत्व का भाव जागृत तो प्रार्थना करें, ये तो कर सकते हैं। नवग्रह देवता का पूजन करें। नवग्रह देवता का अगर कोई दोष आदि लगा हो, इस दोष से उन्हें बच्चों को हमें मुक्ति मिले, प्रार्थना करें। नवग्रह देवता का पूजन करें, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, प्रार्थना। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। समर्पित कर दें। फिर से अक्षत पुष्प ले लीजिए। क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करें। क्षेत्रपाल देवता ग्राम देवता इष्ट आराध्य का पूजन। ओम क्षेत्रपाल नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया समर्पित कर दे। सर्वदेव नमस्कारः। दोनों हाथ जोड़कर नमः शब्द के साथ दिव्य शक्तियों को नमन वंदन करें। हमारे वृत्तियों में संस्कारों में झुकने की प्रवृत्तियां जागे, झुक करके हम उनका सम्मान करें। आइए सभी दिव्य शक्तियों को नमन वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिव पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम तत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, वाचन अर्थात घोषणा करना, सबके कल्याण में जीवन की प्रार्थना। बच्चे के जीवन में आरोग्यता की वृद्धि हो, संस्कार में जीवन बने, हमारा जीवन कल्याणकारी बने। अंतरिक्ष में विद्यमान शक्तियों का आवाहन पूजन करते हैं। स्वस्ति वाचन पाठ। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो मिठस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराडमसि विष्णोः स्नात्रयस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेद्धि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव
यत् भद्रं तन्नः शुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बस सिलाकर वहीं समर्पित कर दें। अब शिखा स्थापना और मुंडन संस्कार पहले कराएंगे, उसके बाद फिर दीक्षा संस्कार आपका कराएंगे। शिखा स्थापना के लिए कटोरी इसका पहले महत्व और लाभ बतला देते हैं। मुंडन संस्कार कहा जाता है 83,99,999 योनियों में जन्म होने के पश्चात ये मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इस 83,99,999 योनियों में जब हमारा जन्म होता है, उस योनि के जो संस्कार, उस योनि में जो हमारा कर्म है, जिसमें योनि में जन्म होगा उसमें हम कर्म करेंगे, उसके जो गुण है, उसके जो संस्कार है हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार जम जाते जो जन्मों जन्मांतरों तक साथ चलते हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि बच्चे में ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे संस्कार देखने को मिलते हैं। वह संस्कार, वह गुण न ही किसी माता पिता में, न ही परिवार के किसी सदस्य में मिलता है। वो संस्कार कहाँ से आए? वो संस्कार पूर्व जन्म का संस्कार है। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है देवता बनने में, आपको असुर बनाने का काम करता है। पशुओं जैसा व्यवहार आपके जीवन में जागृत करता है। बहुत ऐसे जीव योनियां जिसके अच्छे संस्कार भी होते हैं, जैसे गौ माता। गौ माता में इतनी सारी अच्छाइयां, एक माता की प्रवृत्ति, करुणा भाव, वात्सल्य, अपनत्व का भाव, स्नेह भाव, ये सारे गुण गौ माता में पाए जाते हैं जो एक माता की प्रवृत्ति है। बहुत सारे जीव योनियां जिसके बहुत सारे दोष हैं, दुर्गुण है, जैसे सर्प। सांप के क्या गुण है नहीं पता, खाली सांप मारना जानते हैं। सांप के गुण है आवेशग्रस्त होना, क्रोधी होना, आग बबूला होना। अभी के समय में आप जो देखते हैं, जो मनुष्य में तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, लोग तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, इतना आवेशग्रस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को भूल जाते हैं कि हमारा परिवार है, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बिना सोचे विचारे तुरंत बदला लेने की भावना प्रकट कर लेना, यहाँ तक कि प्राण हरने तक की षड्यंत्र कर लेते। ये गुण किसके हैं? सर्प के गुण। बिना सोचे विचारे दूसरों का प्राण हरने के बारे में सोच लेना, दूसरों का हित करने के बारे में सोच लेना, इतना आवेशग्रस्त होना, ये सब सर्प के गुण है। सांप का गुण। बंदर के क्या गुण है? बंदर नकल करता है, दूसरों के सामान छीन करके भाग जाता है, दूसरों को परेशान करता है। अभी के समय में जो मनुष्य दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का नकल करते हैं, दूसरों के सामान लूट करके भाग जाते हैं, वो गुण बंदर के। कई लोग तो ऐसे हैं, जब तक वो दूसरों को परेशान नहीं करेंगे खाना नहीं पचता, खाना ही नहीं पचता उनका जब तक परेशान ना करें। ये बंदर के गुण है। और कोयल के क्या गुण है? कोयल कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, सदैव कौवा के घोंसले में अंडे देती है। शिशु पालन जैसे मुख्य कर्तव्य का ध्यान न रखना। अभी के समय में जो माता पिता अपने बच्चे को श्रम का महत्व नहीं समझाते, जो उन्हें संस्कार नहीं देते, उनका विवाह करवा देते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो कोयल की प्रवृत्तियां जाग जाती है, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपने मनोरंजन में, अपनी मौज मस्ती में केवल जीवन व्यतीत करते रहते हैं। बच्चे लोग अपशब्द बोल रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, फिर भी अनदेखा कर रहे हैं। कुछ बच्चे को संस्कार नहीं देते, कुछ समझाते नहीं, कुछ रोकते तक नहीं। ये किसकी प्रवृत्तियां हैं? कोयल के। ऐसे ऐसे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये मानव जीवन को कलंकित करने वाला माना जाता है। इसलिए ऋषियों ने ये संस्कार का विधान बनाया, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के माध्यम से पूर्व जन्म के कुछ संस्कार से बच्चे मुक्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार कराया जाता है। और भी वैज्ञानिक तथ्य है, लोग सोचते हैं हमारा तो चलते आ रहा है, पुराने समय से बहुत पहले से चलता आ रहा है, मुंडन कराना है इसलिए मुंडन करा रहे हैं पंडित जी, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, आध्यात्मिक तथ्य भी है। लोग बतलाते हैं कि ये मुंडन जब होता है तो हमारे सिर में जो गर्मी आती है, उष्मा अधिक जो जागृत होती है, मुंडन कराने से ठंडक महसूस होता है, बच्चे को आराम मिलता है, कुछ एक अच्छा सुकून मिलता है उसे।
शांति की प्राप्ति होती। और भी बतलाया जाता है जो फोड़े फुंसी जो होते हैं, ये मुंडन कराने से फोड़े फुंसी से उस बच्चे को मुक्ति मिलती है, बीमारी